welcome to my channels Agrahari Sir Maths Physics. In the previous videos we have discussed about the direct variations and the important exercise from R.S. Agrawal book, that is 12a. In these chapters we will discuss about the inverse variations and the related exercise from R.S. Agrawal book is 12b. As you know that if the two datas are in inverse variation, then if we increase one data, then second is decreases, and if we decrease the first data, second data is increases. कहने का सेंस है अगर एक डाटा को हम बढ़ाते हैं, जैसे सपोज कर लेते हैं किसी वर्क को हमें कंप्लीट कराना है, सपोज कर लो एक घर की पेंटिंग करानी है, तो आप जैसा कि जानते हो कि अगर नंबर ऑफ़ वर्कर्स को हम बढ़ा देते हैं तो उस घर की पेंटिंग कम दिनों में हो जाता है. इट मीन्स एज वी इंक्रीजेज द नंबर ऑफ वर्कर्स, द नंबर ऑफ डेज इज़ हियर डिक्रीज्ड. अगर हम नंबर ऑफ पर्सन्स को घटा देते हैं तो हमें वही काम कंप्लीट कराने में काफ़ी समय लग जाता है. इट मीन्स इफ़ वी डिक्रीज द फर्स्ट डाटा then second data is increased. Such types of variations is known as a inverse variations. बच्चों ऐसे केस में दो डाटास का प्रोडक्ट जो होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, जैसा कि पहले भी बताया जा चुका है. इसी बेस्ड पर एक्सरसाइज 12b में जो पहला क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पे 3 टेबल्स दे रखे हैं और हमें पता करना है कि ऑब्जर्व द टेबल गिवन बिलो इन ईच केस फाइंड वेदर एक्स वाई आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल. मतलब ये जो डाटाज दिए हैं जिसमें एक्स और वाई की वैल्यू दिया हुआ है, हमें पता करना है क्या ये इन्वर्स प्रोपोर्शंस में हैं या नहीं हैं, ये हमें पता करना है. तो अगर हम पहले क्वेश्चंस की बात करें और पहले क्वेश्चंस में एक्स वाई की वैल्यू निकालें, क्योंकि इन्वर्स वेरिएशंस में दोनों डाटास का जो प्रोडक्ट होता वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए. अगर ये सारे डाटाज इन्वर्स वेरिएशंस में हैं देन देयर प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई मस्ट बी द सेम. तो अगर मैं यहाँ एक्स वाई निकालने की कोशिश करूँ तो बच्चों अगर मैं एक्स वाई का प्रोडक्ट यहाँ निकालने की कोशिश करूँ तो यहाँ एक्स वाई का प्रोडक्ट क्या मिलेगा, 6 × 9, यहाँ मिलेगा 10 × 15, यहाँ मिलेगा 14 × 21 और यहाँ मिलेगा 16 × 24. बच्चों जब हम 6 × 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें मिलेगा 54. 10 का जब 15 में मल्टीप्लाई करूँगा तो ये मिलेगा 150. जब 14 का 21 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका मिल जाएगा 14 × 1 = 14, 14 × 2 = 28, 28 and 1 29, that is 294 and 16 24 ja 16, 16 4 ja 64, carry 6, 16 2 ja 32, 38. So here these datas are not equal, so the given datas are not in inversely proportional. Since product is not same, so the given are not in inverse proportion. Now if we check the second part, this is the first part, the second part is once again we want to find out their product. Here their product is 5 × 18, x and y 5 × 18, 9 × 10, 15 × 6, 3 × 30 and 45 × 2. What happened? 18 5 are 90, 10 9 are 90, 15 6 are 90, 33 are 90, 45 2 are 90. So all the datas are given in which the products are equal to each other. So we can say that the given datas are in inverse variations. So the given data are in inverse proportion. Now their third part is given. In the third part, once again x and y is given. So we want to find out their product.
What is the product here? 9 into 4, comma 3 into 12, comma 6 into 9, comma 36 into 1. What happened? 9 4 जा 36, 12 3 जा 36, 6 9 जा 54 and 36. Here one data is not same, so this data are, so the given datas are not in inverse variation or inverse proportion. Now the question number 2 of exercise 12b is given. Here one table is given. In this table it is given that these datas are in inverse variations. So we want to find out the unknown quantity like y1, x1, x2 and y2. बच्चों जैसा कि मुझे पता है कि अगर गिवन डाटाज इनवर्स वेरिएशंस में होता है तो उनका प्रोडक्ट क्या होता है? कांस्टेंट में होता है। तो लिखोगे सिंस द डाटाज आर इन इनवर्स वेरिएशन, so xy is equal to constant, that is x1 y1 is equal to x2 y2 is equal to x3 y3 is equal to x4 y1 and so on. Here my dear students, the x1 is 8, y1 is y1. Here x1, x2 is x1 and y2 is 4, x3 is 16, y3 is 5, x4 is here x2. देखो x4 के प्लेस पर क्या दिया? x2 इंटू 2 और x5 के प्लेस पर 80 दिया इंटू y2. Here what happened? Here one known quantities is given out of this, that is 16 5 ja, that is 16 5 sa 80. So 8y1 is equal to 4x1, this is x1, is equal to 2x2 is equal to 80y2. बच्चों ये सारी चीज़ें एक दूसरे के इक्वल हैं, तो मैं लिख सकता हूँ 8y1 इज इक्वल टू 80, 4x1 मतलब ये डाटा इसके इक्वल होगा, 4x1 भी किसके इक्वल होगा? 80 के इक्वल होगा, 2x2 भी किसके इक्वल होगा? 80 के इक्वल होगा और 80y2 भी किसके इक्वल होगा? 80 के। तो बच्चों अगर यहाँ से y1 की वैल्यू निकाला जाए तो दैट इज़ 80/8, दिस विल बी कैंसिल आउट, बी गेट 10। अगर मैं यहाँ से x1 की वैल्यू निकालूँ 80/4, 4 से 20 टाइम्स कटेगा तो x1 की वैल्यू जो आएगी दैट इज़ 20। और यहाँ अगर x2 की वैल्यू निकालें तो दैट इज़ 80/2, 2 से कट करेंगे 40, x2 की वैल्यू हो गई 40। अगर यहाँ से y2 की वैल्यू निकाला जाए दैट इज़ 80/80, दिस विल बी कैंसिल आउट, y2 की वैल्यू 1। तो दीज आर द वैल्यूज ऑफ अननोन क्वांटिटी। Now we will solve the next question, that is question number 3. In question number 3 is given, if 30 men can reap a field in 8 days. Here the number of person is given, men's, and number of days. Okay, here if you apply 35 men's on any work, on any field, then they can reap the field in 8 days. In how many days 20 men can reap the fields? तो हम यहाँ सपोज कर लेते हैं x, तो लिखेंगे let 20 men can reap the field in x days. तो बच्चों हमें ये पता है कि अगर किसी वर्क पर मैं 35 मिनट्स लगा दूं तो उस वर्क को 8 डेज में कंप्लीट करते हैं। अगर मैं नंबर ऑफ पर्सन को घटा दूं तो नंबर ऑफ डेज क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट के आधार पर कह सकते हैं कि जो
डाटा गिवन है, दीज आर इन इनवर्स वेरिएशन। और बच्चों जब डायरेक्ट वेरिएशन में न होकर के डाटा इनवर्स वेरिएशंस में होता है तो उनका प्रोडक्ट क्या होता है, इक्वल होता है। तो ऐसे पोजीशंस में हम क्या लिखेंगे, 35 इंटू 8 इज इक्वल टू 20 इंटू एक्स। तो यहाँ से जब मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो दैट इज़ 35 इंटू 8, 20 इसके नीचे चला आएगा तो 5 7 जा 5 4 जा 4 2 जा दैट इज़ 14। सो द नंबर ऑफ डेज इज इक्वल टू 14. This is the correct answer. Now the next question is question number 4. In question number 4 it is given that 12 men can dig a pond in 8 days. अगर किसी भी पॉन्ड्स को डिग करना हो और उस पर मैं 12 मैन लगा देता हूँ तो 8 डेज़ में कंप्लीट कर देते हैं। हाउ मेनी मेन्स कैन डिग इन 6 डेज़, कितने मैन उसको 6 डेज़ में कंप्लीट कर देंगे। तो लेट नंबर ऑफ मेंस बी एक्स। सो हमें क्या फाइंड आउट करना, मेंस, तो यहाँ पे लिखेंगे डेज और यहाँ पर लिखेंगे मैन। शुरू में हमने क्या किया था, हमने 12 मैंस को लगाया था और उन्होंने उस पॉन्ड्स को 8 डेज में डिग कर रखा। हमसे पूछा जा रहा कितने मेंस लगाएं कि वो इस पॉन्ड्स को 6 डेज़ में कंप्लीट कर देते। ओके, तो आप पहले इस डाटा को देखिए कि अगर किसी भी पॉन्ड्स को खुदाई करने के लिए, डिग करने के लिए अगर 12 मैन लगाए जाते हैं तो 8 डेज़ लेता है। तो अगर आप नंबर ऑफ पर्सन बढ़ा देते हो तो नंबर ऑफ डेज कम हो जाते हैं, और अगर नंबर ऑफ पर्सन डिक्रीज कर देते हो तो नंबर ऑफ डेज बढ़ जाते हैं। तो मतलब एक डाटा के बढ़ने पर दूसरा डाटा घट रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो ऐसे पोजीशंस में गिवन डाटा डायरेक्ट वेरिएशंस में होगा, और ऐसी पोजीशंस में इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। तो इट मीन्स 8 इंटू 12 इज इक्वल टू 6 इंटू एक्स। तो x की वैल्यू जब निकालेंगे तो 6 को इधर ट्रांसफ़र करेंगे, दैट इज़ 8 इंटू 12 बाई 6, दैट इज़ 6 2 जा, देयरफॉर 8 2 जा 16। इट मीन्स देयर आर 16 मेंस। In question number 5, it is given that 6 cows graze a field in 28 days. How many cows are here? 6 cows can graze a field in 28 days. How long would 14 cows take to graze the same field? तो हम सपोज करेंगे let 14 cows can graze the field in x days। तो हमें क्या करना, 6 काउस, हमें क्या पूछा हुआ, डेज पूछ रखा है। तो डेज को हम लोग नीचे लिख देंगे और काउस को कहाँ लिख देंगे, ऊपर। तो शुरू में हमें जो क्वेश्चंस में दे रखा है कि 6 काउस कैन ग्रेज द फील्ड इन 28 डेज। तो 14 काउस कितने डेज में उसको ग्रेज करेंगे, एक्स डेज में ग्रेज करेंगे, क्योंकि आपने सपोज कर रखा है एक्स डेज में। तो बच्चों अगर 6 काउस 28 डेज में करते हैं और नंबर ऑफ काउस को बढ़ा दो तो उस खेत को चरने में उसको कम दिन लगाएंगे, अर्थात वहाँ के जो घास फूस उसको खाने में बहुत जल्दी खा लेगा। तो ये भी डाटा क्या हुआ, इनवर्स वेरिएशंस में हुआ। और जब डाटा इनवर्स वेरिएशंस में होता है तो इन दोनों का प्रोडक्ट आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। दैट इज 6 इंटू 28 इज इक्वल टू 14 इंटू एक्स। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 6 इंटू 28 बाई 14, दैट इज 14 2 जा एंड 6 2 जा। आंसर इज 12 days. Now the question number 6 is given. A car takes 5 hours to reach a destination by traveling a speed of 60 km per hour. अगर एक कार के द्वारा 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाया जाए तो वो अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचा देगा मुझे 5 आवर्स में। कहता हाउ लॉन्ग विल इट टेक व्हेन द कार ट्रेवल्स एट 75 किलोमीटर पर आवर। तो कितना समय ये लेगा अगर कार की स्पीड को 75 किलोमीटर पर आवर कर देते हो। तो लेट द रिक्वायर्ड टाइम बी t। Let the
रिक्वायर्ड टाइम बी टी। देन हम बॉक्स बनाएंगे और बॉक्स में लिखेंगे स्पीड ऑफ कार और यहाँ पे लिखेंगे टाइम्स। तो जब कार हमारी 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती थी तो हमें कितना टाइम लगता था? 5 आवर्स। अब कार की स्पीड को उठा के बढ़ा दिया गया है, दैट इज़ 75 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड उसको दे दी गई है। तो हमने सपोज किया उसको टाइम क्या लगा? टी लगा। तो बच्चों आपको पता होगा कि अगर कार धीमे धीमे जाएगी तो डेस्टिनेशन पर पहुंचने में अधिक समय लेगा, अगर कार तेज़ी से जाएगी तो डेस्टिनेशन में पहुंचने पर समय बहुत कम लगेगा। इस कारण ये भी गिवन डाटा क्या है? इनवर्स वेरिएशंस में है। और जब डाटा इनवर्स वेरिएशंस में होता है तो वंस अगेन हम क्या कर देते हैं? इसका इसमें मल्टीप्लाई और इसका इसमें मल्टीप्लाई, अर्थात 60 × 5 = 75 × t। तो व्हाट हैपन? द वैल्यू ऑफ t = 60 × 5। 75 इसके साथ मल्टीप्लाई है, इधर डिवाइड करोगे 75। अब देखो 5 1 जा 5, 5 जा 25, इट मीन्स 15 5 जा 75। अब 15 से इसको काटोगे दैट इज़ 4। देन व्हाट हैपन? t = 4 आवर्स इज द करेक्ट आंसर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 7 इज गिवन ए फैक्ट्री रिक्वायर्स 42 मशीन टू प्रोड्यूस ए गिवन नंबर ऑफ आर्टिकल इन 56 डेज। देखो एक फैक्ट्री को रिक्वायर्स है 42 मशीन्स की जो प्रोड्यूस करता है ए गिवन नंबर ऑफ आर्टिकल इन 56 डेज। ओके, हाउ मेनी मशीन्स वुड बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द सेम नंबर्स ऑफ आर्टिकल इन 48 डेज। तो अगर हमें देता क्या है? कहता है ए फैक्ट्री रिक्वायर्स 42 मशीन टू प्रोड्यूस द नंबर्स ऑफ आर्टिकल्स इन 56 डेज। तो हमारा यहाँ नंबर ऑफ डेज दे रखा है। अगर मैं 56 डेज अप्लाई करूँ, हमारी जो मशीन की रिक्वायरमेंट है दैट इज़ 42 है। ओके, अर्थात अगर किसी भी आर्टिकल को प्रोड्यूस करने के लिए 42 मशीन्स लगा दिए जाते हैं तो वो उसको 56 डेज में कंप्लीट कर देता है। तो हमसे पूछा जाता है कि अगर हमें 48 डेज में कंप्लीट कर देना हो, ओके, तो हमें कितनी मशीन्स लगानी पड़ेगी? तो हमारे पास कोई डाटा नहीं दिया है, पूछा जा रहा है कितनी मशीन्स लगानी पड़ेंगी। तो लेट द नंबर ऑफ रिक्वायर्ड मशीन बी x। तो इसका हमने टेबल बनाया कि अगर 42 मशीन लगाते हो तो 56 डेज लगता है। हम सपोज कर लेते हैं मैंने x मशीन लगाया तो 48 डेज लगेगा। तो बच्चों आपको पता है कि अगर किसी भी आर्टिकल को किसी मशीन के द्वारा प्रोड्यूस करना हो तो अगर मशीनें कम होंगी तो अधिक डेज लगेंगे आर्टिकल को प्रोड्यूस करने के लिए, अगर मशीनें अधिक होंगी तो कम डेज में ही आर्टिकल प्रोड्यूस हो जाएगा। तो ऐसे पोजीशंस में ये भी जो डाटाज है वो डाटा भी क्या है? इनवर्स वेरिएशंस में है। और जब डाटाज बच्चों इनवर्स वेरिएशंस में होता है तो वंस अगेन इन दोनों का प्रोडक्ट इन दोनों के प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऐसी अवस्था में मैं x की वैल्यू निकालूंगा दैट इज़ 56 × 42/48। x के साथ 48 मल्टीप्लाई है, इसको इस साइड भेज दोगे तो 48 हो जाएगा। अब इसको हम डिवाइड कर देते हैं। तो जब डिवाइड करते हैं तो कैसे कटेगा? तो देखो 4 से 4 1 जा 4 2 जा 4 1 जा 4 16 जा। नाउ 2 7 जा 2 6 जा एंड 6 7 जा, that is 49. So number of machines will be 49. Now the question number 8 is given. What is the question number 8? 7 taps of the same size fill a tank in 1 hour 36 minutes. 7 taps एक सेम साइज का टैंक है, उसको फिल करने में 1 आवर 36 मिनट लेता। 7 टैप्स मतलब 7 नल, 7 नल लगा दिया गया। उस टैंक को 1 आवर 36 मिनट में क्या कर देता? फुलफिल कर देता है। हाउ लॉन्ग 8 टैप्स ऑफ द सेम साइज टेक टू फिल द टैंक। अगर हम उस टैंक को भरने के लिए 8 टैप लगा देते हैं तो कितना समय लेता है? तो बच्चों हमसे पूछा जा रहा है, टैप्स यहाँ दे रखा है और हमसे यहाँ पे टाइम दे रखा है। ओके, तो टैप्स दे रखा है
शुरू में कितने स्टेप्स लगाए गए, 7 टैप्स ओपन किए गए टैंक को फुलफिल करने के लिए, और टाइम क्या लगता है 1 आवर्स 36 मिनट। बाद में कहता है कि अगर मैं 8 टैप्स लगा दूं तो हमें कितना टाइम लगेगा। तो सपोज कर लेते हैं द रिक्वायर्ड टाइम इज, लेट द रिक्वायर्ड टाइम इज स्मॉल टी। तो एक चीज़ हमें यहाँ ध्यान देना होगा बच्चों, यहाँ 1 आवर्स 36 मिनट्स लिखा हुआ है, तो ये 2 यूनिट में है, आवर्स और मिनट में, तो इसे हमें किसी एक में बदलना होगा। तो चलिए इसे हम बदल लेते हैं मिनट्स में। तो 1 आवर्स आपका हो जाता है 60 मिनट प्लस 36 मिनट, ये जब जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 96 मिनट। अर्थात 7 आवर्स 7 टैप्स जो हैं टैंक को 96 मिनट में फुलफिल कर देते हैं। तो अगर 8 टैप्स लगाओगे तो कम समय में करेंगे, अर्थात नंबर ऑफ टैप्स इंक्रीज किए तो टाइम्स क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। वंस अगेन दिस गिवन डाटाज आर इन इनवर्स वेरिएशन, सो देयर प्रोडक्ट दैट इज 7 × 96 इज इक्वल टू 8 × t। बच्चों हमें t की वैल्यू निकालनी है तो 8 को इधर भेजना होगा, अर्थात 7 × 96/8 इज इक्वल टू t। 8 1 जा 8 2 जा 12 7 जा 84 दैट इज t। तो बच्चों टाइम कितना आया, 84 आया। इट मीन्स टाइम, रिक्वायर्ड टाइम इज 84 मिनट। दिस इज़ द करेक्ट आंसर। लेकिन चूंकि ये 84 है तो मैं जानता हूँ कि अगर इसको मैं लिख दूँ 60 मिनट प्लस 24 मिनट, क्योंकि 84 को हम लिख सकते हैं 60 + 24, और 60 मिनट को हम क्या लिखते हैं 1 आवर्स, और 24 मिनट को क्या लिखेंगे 24 मिनट। तो या तो आंसर ये होगा या तो आंसर ये होगा। इन क्वेश्चन नंबर 9 इट इज़ गिवन दैट 8 टैप्स ऑफ द सेम साइज फिल द टैंक इन 27 मिनट्स। अर्थात अगर 8 टैप्स को लगाया गया तो वो 27 मिनट में टैंक को क्या कर देता, फुलफिल कर देता है। फिर कहता है इफ़ 2 टैप्स गो आउट द ऑर्डर, अगर इसमें से 2 टैप्स क्या हो गया, डिसऑर्डर हो गए, हाउ लॉन्ग वुड द रिमेनिंग टैप्स टेक टू द फिल्ड टैंक। तो रिमेनिंग क्या करेगा, उसे कितने दिन में कितने समय में भर देगा। तो बच्चे जब 2 टैप्स आपका ख़राब हो गया तो यहाँ पर नंबर ऑफ टैप्स के कितने बचे, 6 टैप। तो 8 टैप्स तो 27 मिनट में भरते हैं, तो 6 टैप उसे कितने दिनों में भरेंगे, कितने मिनट्स में भरेंगे। तो सपोज कर लेते हैं वो x मिनट में भरेंगे। तो बच्चों यहाँ पर अगर मैं लिख दूँ टैप्स और यहाँ पर लिखूँ टाइम, तो क्वेश्चंस के अनुसार 8 टैप्स इसको कितने दिन में भरते हैं 27 मिनट में, तो 6 टैप कितने मिनट में भरेंगे x मिनट में। फिर ये डाटा क्या हो गया, इनवर्स वेरिएशंस में हुआ। जब इनवर्स वेरिएशन में हो, क्योंकि अगर 8 टैप्स हैं तो 27 लग रहा है, नंबर ऑफ टैप्स घट गए तो टाइम अधिक लगेगा, इसलिए डाटाज आर इन इनवर्स वेरिएशन। सो 8 × 27 इज इक्वल टू 6 × x। तो व्हाट हैपन, 8 × 27/6, that is 2 3 जा 2 4 जा 3 9 जा, that is 36 minutes. This is the required time.